So before I begin with the mathematical concept of relation and function, and we already discussing the types of functions, there is something very important about today's date. Anyone from you? What's so National special about 12th of Jan? National Youth Day. Yeah, great. So today is a National Youth Day, and that is being celebrated in memory of Swami Vivekananda ji. He was born on this day, and why it is being celebrated. I mean, of course, you being a youth should be aware of that because he always focused immensely on harnessing the potential of the youth, bringing best out of whatever is existing inside our heart and mind. And he always wanted to inspire the youth generation, the young generation, so they could counter the British and attain independence. So now we are dependent, but are we really? So that is a question mark. So need to think about the ideas which were given by Swami Vivekananda ji, and there are the five main teachings. I mean, when the crux of the story की बात करी जाए, so main 5 points पे quickly अगर मैं बात करूँ, it's all in the mind. What you think, you will be. So if you think you are weak, you will be weak, and if you think you are strong, you will be strong. So that is very, very important. And of course, you are all giving the 12th board examinations. For that, I personally feel that is very important to think that you are very strong, you are going to do very well. So think positive and follow the three P's: the purity, patience, and perseverance. By patience, I'm sure purity, everyone aware of that. Perseverance is the continuation. So, whatever work you are doing, do that with sincerity, dedication, and hard work, right? And that's very, very important for the success and all above the love. What Vedantas call religion, that's related to some spiritual kind of a thing which he always talked about, uh, telling about Vedas. So whatever the knowledge is given in the Veda, they are the highest level of teachings he did talk about. Then end the hunger and ignorance. So hunger hai, ignorance hai world के अंदर, but he hold every man a traitor. ट्रेटर में मतलब क्या हो जाता है, डिसेप्टिव, जो कहते कुछ है करते कुछ है. तो मतलब वो having been educated हैं, but they do not pay a least attention to those who are actually need their help, their support. As in this present time, there are many जिनको आज बहुत ज्यादा किसी तरह की इमोशनल, फाइनेंशियल या कोई रिक्वायरमेंट है, तो क्या उसमें हम कुछ हेल्प कर रहे हैं या कर सकते हैं इन एनी वे? दैट इज व्हाट ही डिड टॉक अबाउट ईयर्स बैक. Every man's true religion, again, whatever your pure soul is saying, that is your true religion. So with this we start with our mathematical class now. अच्छा, मैथ से मुझे याद आया, वैसे अगर आज की डेट को भी देखा जाए, 12/1/21. So anything special about this number? So from the start and from the ending, it becomes 121. Yeah, it's a palindromic. The month year 2021 की ये पहली palindromic date है. Okay. Coming back to relations and functions, functions में types of functions में हमने बात करी थी justifying, proving the function as one or onto. Check out this type of a important question. Usually इस तरह के आते रहे हैं. Let A is R minus 3 and B is a set R minus 1. Consider the function f from A to B. तो f from A to B, और मैं A क्या गिवन है, R minus 3 से लेकर R minus 1. And the definition is x minus 2 over x minus 3. Is f 1 on 2 or not? For 1 let x1 x2 belongs to r minus 3. ये बेसिकली डोमेन रहा था. नेक्स्ट क्या किया था, let f of x1 is equal to f of x2. This gives me what is f of x1. ये fx की डेफिनेशन है.
आप x की जगह x1 पुट कर दीजिए थ्रू आउट. Similarly, f of x2 would be this. Cross multiply and simplify. सिंपल कैलकुलेशन है. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड start opening the brackets. So this would be x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 minus minus plus 6. सेम वे RHS को ओपन करा x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 and plus 6. Note that x1 x2 cancelled out और प्लस 6 से प्लस 6 कैंसल्ड आउट. जब आप रीअरेंज करेंगे तो -3x1 प्लस 2x1 विल बी -3x2 प्लस 2x2 minus x1 is minus x2. Finally, I get exactly x1 is equal to x2 और इसका मतलब f हो गया 1 1. चेक आउट द मेथड, क्योंकि कॉमनली अब हम ऐसी चीजें यूज करने वाले हैं तो जनरलाइज्ड हो गया है कि f एक्चुअली इस तरह का 1 1 है और ये रैशनल फंक्शन है. तो जनरली आपको मिलेगा कि ये 1 1 है. और भी जो मैं एग्जांपल लूंगा ऑन टू में बी डाइसी, वो हमें चेक करना ही पड़ेगा. कैसे करेंगे? अब हम बात करते हैं ऑन टू की. check it out for onto. जनरल अप्रोच कैसे बताई थी? लेट यू टेक द फंक्शन एज y, लेट y इक्वल टू fx. स्टार्टिंग नोट्स को खोलकर देखना, फॉर्मूलाज जो मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताए थे. y लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और गेट x इन टर्म्स ऑफ y. क्या मतलब? ये ब्रैकेट ओपन किया और x वाली टर्म कंबाइन कर दो. ये रीअरेंज कर दिया, x इज कॉमन और फाइनली देखा कि x आ गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1. अब आप चेक करिए क्लियरली, RHS की टर्म कब डिफाइन होगी? जब नीचे 0 नहीं होगा, मींस y शुड नॉट बी 1. y आपका को डोमेन में होता है, y तो fx के इक्वल था, मींस fx कैन नॉट बी 1. इन सिंपल वर्ड, fx सिर्फ 1 नहीं हो सकता. 1 नहीं हो सकता का मतलब रेंज हो गई r माइनस 1. तो रियल में से सिर्फ 1 हटा दिया. ऑल्सो नोट दैट ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में यहां जो गिवन था वो क्या होता है? कोडोमेन. दैट इज रेंज किसके इक्वल आ गया? कोडोमेन के. ये हमने यहां सिंपली जस्टिफाई कर दिया है. रेंज और कोडोमेन इक्वल होने का मतलब f हो गया ऑन टू फंक्शन एज वेल. अब मैं एक और फर्दर, यहां जो क्वेश्चन में पूछा था वहां तक तो हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है. अब मैं एक चीज आपको यहां एक्स्ट्रा बता रहा हूं. f being 1 1 and onto, this imply
f हो गया है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि f इज इनवर्टिबल फंक्शन, और इनवर्टिबल का मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ अगर एग्जिस्ट करेगा तो कैसे निकालते हैं एफ इनवर्स? हार्डली 2 लाइन में आने वाला है, इसीलिए मैं आपको मेथड बता रहा हूं। आप चेक करिए, y था एफ एक्स के इक्वल। अब क्योंकि इनवर्स मैंने कहा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये f इधर आ जाएगा, f इनवर्स y। तो x कितना यहां से लिख सकता हूं, x कितना हो जाएगा, इधर इनवर्स हो गया f इनवर्स ऑफ y। ऑल्सो हमने कहीं ना कहीं x की वैल्यू निकाली होगी y की टर्म्स में, ये रही x की वैल्यू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। चेक इट आउट, बोथ आर इक्वल टू x, तो RHS भी इक्वल हो गए। तो फ्रॉम 1 and 2 f इनवर्स ऑफ y आ गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। बेटर है अगर ये मैं बता दूं साथ में इन डेफिनेशन कि सिर्फ y 1 नहीं हो सकता। नॉर्मली हम इनवर्स भी x की टर्म में लिखना प्रेफर करते हैं। आप y को थ्रू आउट फिर से x से रिप्लेस कर दीजिए, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अगर आप ऊपर वाले स्टेप तक भी अगर छोड़ देते हैं आंसर से एफ इनवर्स y की टर्म में, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट एक कॉमन कन्वेंशन बना हुआ है, वी एक्सप्रेस द आंसर इन टर्म्स ऑफ x, इसीलिए मैंने लास्ट स्टेप एक्स्ट्रा किया है। तो फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो चुका था। एफ इनवर्स निकालना, उसमें सिर्फ एक चीज, और वो यहीं से इसको देखते ही क्लियर है, बस यही मेरा इनवर्स होगा जो x की वैल्यू आई होगी। तो एक आइडिया देने के लिए कि इस तरह से हम एफ इनवर्स भी आराम से, बट इन दिस ईयर रिड्यूस सिलेबस ये वाला छोटा सा स्टेप हटा दिया गया है, तो दिस विल नॉट बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, बट अदरवाइज आपको पता होना चाहिए, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेन चीज तो हमारी हो ही चुकी है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। Check out a very similar question. फॉर्म तो बिल्कुल सिमिलर ही दिख रही है, बट अब की बार देखिए ऑलरेडी कह दिया है, शो दैट दिस इज इंजक्टिव बट नॉट सर्जक्टिव, मीन्स इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड, 1 1 वाला पार्ट तो सिंपली मान लो क्विकली कॉपी होगा जो पहले हमने करा था। तो आप चेक करिए, आपके पास f इज q, मतलब रैशनल नंबर होते हैं, q ये हो गया एफ एक्स आ गया 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। तो लेट अस बिगिन विद फॉर 1 1, मतलब इंजक्टिव। यहां क्वेश्चन में तो इंजक्टिव टर्म दी थी पेपर में, लेट x1 x2 belongs to q minus 3 which is the domain, let f of x1 is equal to f of x2। कुछ स्टेप्स में आप क्विकली लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएंगे। f of x2 हो जाएगा 2x2 + 3 and x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई
and simplify, you will finally arrive at this conclusion. So I have skipped writing 2-3 steps to save the time. वो सिंपल कैलकुलेशन है. अब कहा है इट इज नॉट ऑन टू, ये हमें जस्टिफाई करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं चेक करना कि ऑन टू के लिए क्या मैं करता इन जनरल. लेट y इक्वल टू एफ एक्स, और इससे y आ गया 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3. यूजुअल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रीअरेंज x वाले टर्म्स, x कॉमन, x आ गया 3y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1. इन सिंपल वर्ड ये कब डिफाइन होगा? ये वाला एक्सप्रेशन लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही आ गया. सो क्या लिखेंगे? क्लियरली y कैन नॉट बी 1. इसका मतलब इसकी रेंज y -2 होगा सर. एक मिनट, ओ सॉरी या -2 है, ठीक है, थैंक यू. ये -2, तो रेंज क्या हो गई? सिर्फ 2 नहीं हो सकता, मतलब r -2. बट लुक केयरफुली, यहां कोडोमेन होती है, तो कोडोमेन आपको दिया हुआ था q के इक्वल, राइट. तो अब आप चेक करिए, क्योंकि रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, इसीलिए ये r नहीं आएगा. एक तो अकॉर्डिंगली मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोडोमेन मैक्सिमम होती है और वो q है, तो डेफिनेटली ये r तो हो ही नहीं सकता. तो आपको इसीलिए ये लॉजिक लगा के इसे यहां करना होगा कि ये रैशनल्स की ही सिर्फ बात है, बट 2 नहीं हो सकता. दैट इज range is not equal to codomain. This imply f is not onto, और not onto का मतलब surjective नहीं है, hence proved. यही आपको शो करने थे 2 पार्ट्स. ट्राई आउट इन योर होमवर्क. क्या? गिव काउंटर एग्जांपल. मैं आपको काउंटर एग्जाम्पल का मेथड बता चुका हूं, कुछ इस तरह से सोचना होता है. तो यहां अगर x है तो यहां के सारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में होंगे. तो हाउ यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड एंड प्रोवाइड वन काउंटर एग्जाम्पल. टेक दिस एज अ होमवर्क. बाकी ये जनरलाइज अप्रोच इजी है समझना यहां पर. एंड डोंट बी साइलेंट, कहीं भी डाउट आए तो प्लीज डू आस्क. Check out this question. Show that this function f of x क्या दिया है, x क्यूब प्लस 3 इज इनवर्टिबल. सेकेंड पार्ट को चलो अगर सिलेबस के हिसाब से सोचें तो अगर रिमूव भी कर दें, 2 इनवर्स निकालना आसान है. वंस मैंने इसको इन्वर्टिबल जस्टिफाई कर दिया. बोर्ड के हिसाब से इस बार लैंग्वेज आपको इसकी क्या चेंज मिलेगी, इन्वर्टिबल की जगह क्या लिख कर दे देंगे, शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, या बाइजेक्टिव, या चेक वेदर दिस इज 1 1 और नॉट. तो आई लीव दैट पार्ट टू यू. बहुत सिंपल है. एफ ऑफ एक्स आ गया एक्स क्यूब प्लस 3 फॉर 1 1.
let x1 comma x2 belongs to your domain. Let f of x1 is f of x2. इसके बाद तो ये क्विकली आ जाएगा, ये f of x1 आ गया, 3 से 3 कैंसल, x1 क्यूब इज x2 क्यूब, ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे एक रियल सॉल्यूशन यही आने वाला है और f हो गया 1 1। For onto let y is equal to fx, वो है x क्यूब प्लस 3, इससे x क्यूब कितना आ गया y माइनस 3 और x आ गया y माइनस 3 का क्यूब रूट। अब आपको एक चीज लॉजिकल यहां सिंपली सोचना है, यू हैव x की ये वैल्यू, तो अगर आपके पास y कोई भी रियल नंबर है, y यहां था ना कोडोमेन में, तो कोई भी रियल नंबर में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका क्यूब रूट निकालते हैं, तो दैट अगर डिफाइंड है वो आपकी डोमेन में ही आ रहा है, क्योंकि डोमेन क्या थी R। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या हो गया रियल नंबर। अगेन रियल नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, उसका क्यूब रूट निकालिए, दैट विल बी अगेन रियल। दैट मीन्स thus each y belongs to codomain has pre-image as x in the domain. That is, range is equal to codomain, or this implies f is onto function. अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और अब यहां 9th क्लास का जो रियल नंबर्स आपने स्टडी करे हुए हैं, वो मैंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया है। सिंस f is 1 1, सिंस f is onto, इसका मतलब क्या हो गया, f is बाइजेक्टिव, और इसका मतलब दिस इज इनवर्टिबल। राइट, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं जो इस क्वेश्चन में वैसे कहा था, क्योंकि वो एक स्टेप का पार्ट है। फ्रॉम दिस x आ गया f इनवर्स y, ऑल्सो हम x की वैल्यू निकाल चुके थे, ये रही, ये x की वैल्यू लिख दी थी, दोनों x की वैल्यूज को कंपेयर करा, f इनवर्स y वुड बी y माइनस 3 की पावर 1/3, और ये ऑप्शनल है इफ यू वांट टू राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ x, विच इज द फाइनल आंसर टू द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन था। एनी डाउट टू एनीवन? एक बार ध्यान से देख लीजिए। ओके,
If no doubt, let's proceed further. Check out this question. फंक्शन आपको दिए हैं दो, एक है f फ्रॉम 0, π/2 से लेकर r में सिंपली sin x, और दूसरा फंक्शन आपको दे दिया है g, दैट्स अगेन फ्रॉम द सेम डोमेन टू सेम कोडोमेन, और वो है cos x. Show that f and g are 1 1, but their sum is not 1 1. तो आप चेक करिए, सिंपल क्वेश्चन है. 1 1 कैसे शो करेंगे? फॉर 1 1 यूजुअल मेथड से लॉजिक लगाइए. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to π/2. डोमेन के पॉइंट्स ले लिए. लेट f of x1 इज f of x2. ये क्या देगा? साइन x1 इज साइन x2. थिंक लॉजिकली. हर बार ये साइन से साइन ऐसे नहीं है कि हम कैंसिल कर देंगे. यहां एक सिंपल लॉजिक है. 0 से π/2 के अंदर यूनिक वैल्यू होंगी, तो x1 आ गया x2 के इक्वल. इमेजिन अबाउट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तब थोड़ा और बेटर क्लियर होगा. 1 1 के लिए याद है मैंने आपको क्या बताया था? मैं आपको साइन का ग्राफ सिर्फ 0 से π/2 के बीच में दिखा देता हूं. इतना पोर्शन होते हैं 0 से π/2 में साइन का ग्राफ, और इसमें हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. ड्रॉ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन and it is cutting the graph at exactly 1 point, hence it is 1 1 function. Both are correct. एक कोई भी दिखा दीजिए एग्जाम में, बट आई वुड रिकमेंड अगर आप ये दोनों ही दिखा दें, क्योंकि उससे बेस्ट आइडिया क्लियर है कि आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि करना क्या है. और अगर सर साइन इनवर्स में ले गए उसको, क्या चीज? साइन x1 को का साइन हम उधर लेके साइन इनवर्स कर दे तो? हाँ कर दो, तब भी वो साइन इनवर्स और साइन कैंसल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स के लिए इस रेंज होती है ना, इसमें लाई करना चाहिए -π/2 से π/2, तो इंटरवल इसी के बीच में तो आ रहा है. तो आपने क्या कहा है? आपने ये लिखा हुआ था, आपने ये इधर लाकर साइन इनवर्स कर दिया, और ये कब आपस में कैंसल होते हैं? जब एंगल ये वाला -π/2 से π/2 के बीच में हो, जो हमारा एक्चुअली उसके बीच में तो लाई कर रहा है. तो इसीलिए मैं लॉजिकल कैंसल बिल्कुल कर सकता हूं, एंड दैट वुड गिव मी x1 इक्वल टू x2 ओनली. ओके सर. इसी तरह से cos x को आप जस्टिफाई कर देंगे. अब आया सेकंड पार्ट. वो क्या है? फॉर f प्लस जी. एक तो f प्लस जी फंक्शन हम सम कैसे करते हैं? सम लिखा जाता है एट सम वैल्यू, माने fx प्लस gx. तो ये क्या हो गया? बेसिकली sin x प्लस cos x. राइट. मैं f प्लस जी को एक नया नाम दे देता हूं, फंक्शन ही तो है, h कह दिया, तो इसका मतलब ये hx हो गया. x बिलोंग कर रहा था 0 से क्लोज्ड π/2 के अंदर. What is the value of f of 0 and what is the value of f of h of π/2? h of 0 and h of π/2. Anyone? h of 0 का भी 1 और दूसरे का भी 1, दोनों का. ये 1 and 1. आई होप अब आपको आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए कि एंगल 0 होता तब भी उसकी इमेज 1 है, π/2 होता तब भी उसकी इमेज 1 है. इसका मतलब h is not 1 1.
और यही तो हमको जस्टिफाई करना था। सो इस एग्जांपल से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हुई है कि दो सेपरेटली टू फंक्शंस मे बी वन वन, but their sum need not to be 1 1. Give a pause, think about this. डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो मैं इसी क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज को रीफ्रेम कर दूं तो एक क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है? गिव एन एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस f and g such that both are 1 1 but their sum is not 1 1. तो फिर आपको अपने आप ये फंक्शन सोचने होंगे, दो दैट इज रिक्वायरिंग अ मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये तभी आप जनरली कर पाएंगे जब आपने पहले से इस एग्जाम्पल को किया हुआ है। अदरवाइज सोचना डायरेक्टली इतना इजी नहीं होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन ही आप एग्जाम में इनफैक्ट एक्सपेक्ट करेंगे, बोर्ड्स में भी। चेक आउट दिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस से है। तो अगर मैं वैसे बात करूं तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3, 1.4 and most of the miscellaneous now reduced syllabus में ये हट चुकी हैं। 1.3 से हमें ओनली 3-4 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है और मिसलेनियस से भी ओनली 3-4 क्वेश्चंस। दैट आई एम ऑलरेडी कवरिंग वाया दिस प्रेजेंटेशन, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। तो 1.1 और 1.2 तो पूरी करनी है, along with few questions from the assignment exemplar, वो ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। चेक आउट दिस क्वेश्चन। f from r to, ये देखो जो इतना बड़ा ऐसे लिखा है, लॉजिकली सोचो इसका मतलब क्या है? इट्स ओनली रेफरिंग टू सम ओपन इंटरवल -1 to 1। ये लिख सकता था यहां पर, सोच के देखिए। और फंक्शन है x/1 plus mod x. Show that it is 1 1 and onto. आप चेक करिए, सबसे पहली बात, बिफोर इवन आई स्टार्ट विद 1 1 या onto का सोचना, mod x की डेफिनेशन क्या होती है? It is x whenever x is positive. It is minus x whenever x is negative. इसका मतलब मेरा फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। केस 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, केस 2 व्हेन x इज नेगेटिव। अब अगर x पॉजिटिव है, पॉजिटिव के केस में तो मॉड x सिर्फ x हो जाता है, और इस केस में मॉड x की जगह मैं लिख सकता हूं x ओनली प्लस x। तो दैट्स योर फंक्शन। So definition of the function reduces to x/1 plus x only. और इसे अब आपको जस्टिफाई करना है 1 1 और onto। तो फॉर 1 1 यूजुअल मेथड स्टार्ट कर देना, वही लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, let f of x1 is equal to f of x2. That will give me x1 upon 1 plus x1 is x2 upon 1 plus x2. Cross multiply and simplify would give finally x1 equal to x2, और इससे f हो गया 1 1।
Similarly, for onto usual method, let y is equal to fx cross multiply y plus xy is equal to x. आपको एलिमिनेट करना होता है x की वैल्यू को, तो y माइनस वन, चलो नेगेटिव भी कैंसिल कर देते हैं, y अपॉन वन माइनस वाई। सो ये डिफाइन कब होगा? क्लियरली y कैन नॉट बी वन। ठीक है, यहां पर आपका वही कह रहे हैं, y एक्सक्लूडेड है, वन नहीं है, रेंज आ गया इक्वल टू कोडोमेन। एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, बट इसीलिए इन्होंने ऑलरेडी आपको कह दिया कि भाई शो करो कि मेरा फंक्शन ऑन टू है, तो आपको आइडिया ऑटोमेटिकली लग जाता है कि दिस शुड बी देयर, कि रेंज शुड इक्वल टू कोडोमेन। और अगर रेंज एंड कोडोमेन आपने इक्वल लिख दिए, दिस इंप्लाई एफ इज ऑन टू। ये तो हुआ मेरा केस वन। सिमिलरली अगेन केस टू, उसमें देखिए क्या लेता मैं, x नेगेटिव लेता, तब मॉड x क्या हो जाता, माइनस एक्स, और फंक्शन क्या बन जाता, ये रहा फंक्शन, मॉड x की जगह आ जाता सिर्फ माइनस एक्स। जस्ट दैट फंक्शन देखने में थोड़ा सा डेफिनेशन बदल जाती। यू नीड टू फॉलो द सिंपल स्टेप्स, जो स्टेप्स आपके यहां फॉलो हुए थे, exactly the similar steps will be copied over here, and you will find that even in this case it will be of course 1 1 and on 2. So both the cases आपके पास f आ जाएगा 1 1 and on 2, which shows the complete result. तो थोड़ा सा लॉजिकल है समझने के लिए, ट्राई आउट। एंड कल की क्लास में हमारा ये चैप्टर एंड सिलेबस विल बी फिनिश। फ्यू मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो लास्ट 5 ईयर से ही मैंने बोर्ड्स के पिक करे हैं, 5-6 ईयर्स में जो आए हैं, सो दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दी टुमारोज क्लास। एनी डाउट टू एनीवन? चलिए ठीक है, फिर देन लीव द मीटिंग। ओके चलिए ठीक, यू कैन लीव नाउ। ज्येष्ठा, जयादित्य, लक्ष्य।